So, hello everybody, and welcome to today's session. And am I audible? Please show me a thumbs up if I'm audible. Yes, yes, please. Thank you. Right. There can be glitches in between, but do not worry. Do not break the pace. Stay up there. It can happen that the network from my side or your side goes off or on. Do not panic and just be with the flow as we continue. Right. So, welcome back to today's session number two. And yesterday we had a discussion about something about neuro-linguistic programming and something about the states and how we store the information and how we process the information. Right now, today I'm going to talk a bit more, a bit detail about changing yourself. See, there is something that needs to be changed in you. Either you want to get a better health, or you want to get a better life, or you want to achieve some financial goal, you want to achieve some physical goal, like the fitness wise, or you just want to keep maintain yourself as you are, or you want to upgrade your energies as compared to your age, or you want to feel enthusiastic, something, there has to be a change. And the most easiest way we feel that the change will take place is by reading books or listening books on any software, or by listening motivation. How many of you just raise your hand and let me know now? Again, yeah, I have kept the chat box off for now. If you have any problems from my side, I think I'm loud and clear. Give me a second. Yeah, Preeti, I'm loud and clear. Right, good. Gulsher, yeah, okay, fine. So I think I'm loud and clear. If you are not getting sound or something, don't do that. That distracts me a lot. So it might be from your side. Hopefully you can log out and log in again, and you'll get the sound back. Fine. Okay, coming back to what we were discussing. Whenever you want to change something in your life, you are willing to do that, you are completely positive to do that, you have started the process, you have decided that I don't want this headache anymore, I don't want this migraine anymore, I don't want this arthritis anymore. You start feeding yourself with positive thoughts, you start doing all that is required, and at the end of the day you end up with nothing in your hand. How many of you people have been there? I have been there personally. Let me tell me 1 year before I got into all this. एक साल तक जब मैं इसमें सेटल नहीं हुआ था ना, तो सॉरी मुझे स्विच करना पड़ा, मैं भूल गया था कि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स लेने वाला हूँ सॉरी। ठीक है, 1 साल जब मैं ये सब पढ़ाई कर रहा था, जब मैं इन सब चीजों में था, I was reading, 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 और सब चल रहा था, यस बनना बोर्ड, द प्रोग्राम वाज रेडी, और मैंने ये बना लिया वो बना लिया, सारे अपने प्रोग्राम्स बना लिए, विजुअलाइजेशन रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए, सब सब कुछ बढ़िया, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। और दिमाग तो ऐसा था कि मैं रेस्ट ही नहीं देता था दिमाग को। लेकिन जब कैमरा को फेस करने की बात आती थी, तो कहीं ना कहीं वो मतलब एक 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 कुछ कुछ आके रोक देता था। जब मैं सोचता था कि मैं क्लाइंट्स को हैंडल करूंगा, या मैं क्लाइंट्स को ऐसे वेबिनार करके आप लोगों से बात करूंगा, तो कुछ ना कुछ रोक देता था, ऐसा लगता था अभी कुछ बाकी है, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है वाली फीलिंग आ जाती थी कि कुछ रोक रहा है, कुछ कुछ चीज है जो मुझे वो रिजल्ट नहीं दे रही है जिस रिजल्ट के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये क्या चीज थी, ये क्या है जो मुझे ये रिजल्ट की तरफ नहीं जाने दे रही थी। और काफी मतलब फिर मैंने एक बार फिर से अपना न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को उथल पुथल किया, और एक बहुत जरूरी चीज जो सामने आती है वो होती है आपकी इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी होती है आपका एनवायरमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। कई बार हम जीवन में बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास का जो वातावरण है,
हम कई बार बोलते हैं कि भाई मेरा वातावरण ऐसा नहीं है कि मैं ये करूं, या मेरा सराउंडिंग ऐसा नहीं है कि मैं ये करूं। कभी वेट लॉस वाले आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारा ऐसा घर का एनवायरनमेंट नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ अलग खाना हर बार बनाऊं, या मैं अपने लिए कुछ अलग तरह की सब्जी बनाऊं। घर में सबके लिए वो बढ़िया तेल वाली छोंक के सब्जी बनती है, और मैं बॉइल्ड वेजिटेबल खाऊंगी तो वो हमारे घर में सेट नहीं होता, मैं नहीं कर सकती। ऐसा बहुत सारे लोग, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल था। ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं कि भाई कैसे जब मैं सुबह 8:30 बजे उठता हूँ, 9 बजे घर से निकलता हूँ, तब मैं 10 बजे अपने जॉब पे पहुंचता हूँ, 10 बजे से लेकर के रात को 8, 8:30 वहां से फ्री होता हूँ। घर पहुंचने में आधा घंटा 1 घंटा लगता है। उसके बाद मैं खाना खा करके और फिर रात को रिलैक्स भी ना करूँ, मतलब मैं खाना खा के सोता हूँ, फिर सुबह वही साइकिल मेरी उठती है। तो कहाँ पे मैं इस साइकिल में चेंज लाऊं, कहाँ पे मैं इस साइकिल को तोड़ूं? और आप थोड़ी सी हिम्मत करके सुबह उठना शुरू भी कर देते हैं, अपनी साइकिल को तोड़ भी देते हैं। नया थिंकिंग पैटर्न भी आपने डाल लिया, सुबह आप उठ करके आपने थोड़ी एक्सरसाइज भी चालू कर दी। चलो, शने शने धीरे धीरे आप अपने मॉडिफिकेशंस भी ला रहे हो। लेकिन उसके बाद भी, वो सब होने के बाद भी आप वो रिजल्ट नहीं पाते हो जो रिजल्ट आपको चाहिए होता है। और कुछ लोग इतना नहीं चेंज करते अपने लाइफस्टाइल में, वो सिर्फ अपने दिन भर में छोटी छोटी चीजें चेंज करते हैं और उनको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। ये फर्क कहाँ पे आ रहा है? वो क्या चीज है जो आपको रोक रही है? तो इस चीज को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी इज आपकी एनवायरनमेंट की स्टडी। और इकोलॉजी हम लोग दो तरह से देखते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। एक होती है आपकी इंटरनल इकोलॉजी, एक होती है आपकी एक्सटर्नल इकोलॉजी। आप जो भी चेंज अपने जीवन में करना चाह रहे हैं, जिस भी उद्देश्य से, with whatever goal you are trying to bring, whatever change in your life, it has to be first checked with your ecology. अब इकोलॉजी क्या होती है? देखिए, एक आपकी अभी प्रेजेंट पोजीशन है, एक आपकी अभी एक पोजीशन है जिसपे आप अभी मेंटेन है, दूसरी एक पोजीशन है जहां आप जाना चाह रहे हैं, ये दूसरी पोजीशन है, वेर यू आर विलिंग टू गो। अपन ऐसे कहेंगे कि एक को अपन बोलेंगे अपनी प्रेजेंट पोजीशन ही बोल देंगे, और दूसरे को अपनी डिजायर्ड पोजीशन अपन बोल देंगे। ठीक है? तो आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? आप अपनी इस पोजीशन से आप कहाँ जाना चाह रहे हैं और क्यों जाना चाह रहे हैं, ये डिफरेंस हमारे बीच में क्रिएट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता है कि अभी मैं कहाँ हूँ, राइट, और आप किसी जगह पे हैं और आपको उस जगह से एक डेस्टिनेशन पे जाना है, पर आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप किस जगह पे हो, ताकि आप यहाँ से निकलने का रास्ता अपना ढूंढ सको। दूसरा, जाना जरूरी भी है कि नहीं। अब उसी के जैसा है कि एक बच्चा जाके अपनी पापा को बोला कि पापा मैंने आज एक दादी की मदद करी और वो दादी ने मेरे को बहुत मारा। बोले क्यों? तो बोले क्योंकि मैंने उनको रास्ता क्रॉस करवाया तो उन्होंने मेरे को बहुत डांटा। तो पापा बोले लेकिन रास्ता क्रॉस कराया आपने एक दादी को पकड़ के तो अच्छी बात है, उसमें डांटा क्यों? तो बोले वो दादी जाना नहीं चाह रही थी, फिर भी मैंने जबरदस्ती रास्ता क्रॉस कराया। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपकी मदद करूंगा, आप चेंज को ले भी लोगे, आप चेंज की रोड क्रॉस भी कर लोगे, लेकिन आपका दिमाग फिर जो है फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है उस चेंज को लेने के बाद। आप सोचने लगते हो कि इससे अच्छा तो मैं पुराना अच्छा था, इससे अच्छा तो मैंने नहीं करा था, वो अच्छा था। तो क्या क्या चीज यहाँ पे डिफरेंट हुई? आप जाना चाह रहे थे उस जगह पे, आपकी विलिंगनेस थी, आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपको रास्ता भी क्रॉस करा दिया। अब रास्ता क्रॉस करने के बाद जब मैं आपको छोड़ के वापस आ रहा हूँ, तो आप अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि यार अब ये होता किसके साथ है? मैं बताता हूँ, ज्यादातर कोचेस के साथ यही होता है। थोड़ा टाइम मेरे साथ भी हुआ था लेकिन मैंने अपनी इकोलॉजी चेक कर ली, राइट। सो थोड़े टाइम मेरे साथ भी हुआ था कि यार इतनी माथाकूट है, इतना पढ़ना पड़ता है, इतना सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, इतना वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, ये वेबिनार करने और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब करने से अच्छा तो साला एक नौकरी ले लो, कम से कम हर महीने पैसे तो अकाउंट में आते रहेंगे, काम चलता रहेगा।
जो नहीं समझ में आता था वो कि भाई नौकरी में मैं वो उस तरह से लोगों की लाइफ को टच नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरी कैपेसिटी में है, जो मेरी मेरी कैपेबिलिटी में है। मैं अपनी कैपेसिटी से नौकरी में काम कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी कैपेबिलिटी से काम नहीं कर रहा हूँ। मैं हैप्पी गो लकी कूल काम कर रहा हूँ और वो भी जब तक सेफ्टी है तब तक। द मोमेंट मेरी सेफ्टी खतरे में पड़ती है, द मोमेंट नौकरी में कुछ भी अप्स एंड डाउन हुए, द मोमेंट नौकरी में सैलरी टाइम पे नहीं मिली, द मोमेंट नौकरी में कोई सीनियर चिल्ला दिया, मतलब डिमांड आई आपके ऊपर, तो आप टेंशन में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो। अब ज्यादातर कोचेस ये सोचते हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट किया जाता है, इट इज प्रोजेक्टेड, जितने भी कोचेस है वो आपके ऊपर ये प्रोजेक्ट करते हैं, कोच ट्रेनर्स भी हैं वो भी। अब वो उनकी सेलिंग स्ट्रेटेजी, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो उनका सेलिंग प्रपोजिशन है, सेलिंग स्ट्रेटेजी है। ऐसे ही लोग ऑनलाइन चीजें बेच रहे हैं कि वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप महीने में इतने लाख रुपए बना लोगे, आप महीने में इतने लाख रुपए कमा लो, आप महीने में 10 लाख रुपए कमा लोगे, डू यू वांट टू अर्न 1 करोड़ रुपीज इन 1 ईयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आप वो सिस्टम भी खरीद लेते हैं, आप उस सिस्टम को अप्लाई भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप 1 करोड़ नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि आपकी इकोलॉजी क्लियर नहीं है। अब यहाँ इकोलॉजी का मतलब समझिएगा, आपकी विलिंगनेस भी होगी, आप काम शुरू भी कर दोगे, आप उस पर काम भी कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कोई चीज है, कोई ना कोई चीज है जो आपको रोक देती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक मेरी कमजोरी है कि जिंगी पार्सल, डोमिनोज का, मैं कितनी भी डाइट कर लूं, अच्छे से डाइट फॉलो करूंगा, मैं 1 महीना डाइट प्लान फॉलो करूंगा, लेकिन जैसे ही मैं मेरे ससुराल जाता हूँ वहां पे नीचे डोमिनोज है, और वो डोमिनोज में से मतलब वो ऑलमोस्ट इट इज लाइक अ टोल टैक्स कि मैं जिंगी पार्सल लिए बिना ऊपर नहीं चढ़ता हूँ। और फिर वो जिंगी पार्सल में गपागप, कभी मूड हुआ तो एक, कभी मूड हुआ तो दो खा भी जाता हूँ। अब ये आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, आपको पतले रहना है, आपको अपने आप को मेंटेन करना है, सब कुछ सही है, लेकिन ये भी एक तरह का एक इकोलॉजी है, एनवायरमेंटल इशू हो गया, एक हैबिट हो गई है। बहुत सारी ऐसी हमारी हैबिट्स होती है जो आपको वहां नहीं जाने देती जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपको रोक देती है। उनमें से एक हैबिट ये वाली हो सकती है जो मैंने जैसा बताया, पर आपके गोल के बेस पे ये हैबिट्स हो सकती है। आपको आदत हो गई है कि आप घर पे आकर के रात को सोफे पे ऐसे फैल करके बैठ करके न्यूज देखते रहेंगे, कुछ भी आ रहा होगा, न्यूज चैनल चलती रहेगी, उसमें कचर 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 चलता रहेगा, आप चैनल चेंज करते रहोगे बैठे बैठे 1 घंटा 1.5 घंटा, कुछ भी फ्रूटफुल नहीं है, वो आपको किसी भी तरह से आपकी लाइफ में अपग्रेड नहीं कर रहा है या मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि न्यूज में जो भी कुछ चल रहा है उसमें आप कुछ नहीं करने वाले, आप सिर्फ सुन सकते हो। अभी अभी में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो न्यूज में बहुत चर्चा में रही है, पर मुझे एक बात बताइए, 2-2 घंटा भी रोज आपने न्यूज देख करके क्या आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके? अगर आपने किया है तो बहुत बढ़िया बात है, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा। अदर देन गिविंग सम कमेंट ऑन सोशल मीडिया और कुछ एक दो ट्वीट करने के सिवाय क्या आप और कोई विशेष कंट्रीब्यूशन, क्या आपने जाकर के मोदी जी को कहा कि मैं आपके बीच में और ये मजदूरों ये फार्मर्स के बीच में जो चल रहा है उसको मैं बीच में मदद करना चाहता हूँ? या आप अपना बैग उठा करके उत्तराखंड पहुंच गए कि भाई ये जो मजदूर फंस गए हैं माइंस में उन्हें मैं निकालने में मदद करना चाहता हूँ? नहीं, वी हैव नॉट डन दैट। सिर्फ हमने जो किया है वो ये, हमने हमारी बिजली वेस्ट करी, हमने हमारा कनेक्शन यूज किया, टीवी में जो भी केबल कनेक्शन है हमारा, हमने हमारा टाइम वेस्ट किया, हमने हमारा दिमाग वेस्ट किया, और हम बैठे रहे। अब आप बोलोगे आशीष ये तो यार इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, जनरल नॉलेज तो होनी चाहिए। जनरल नॉलेज जरूरी चीजों की, बिन जरूरी चीजों की नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इकोलॉजी होती है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आपको आपके रिजल्ट पे नहीं जाने देते। ये बाहरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं और ये इंटरनल अंदरूनी फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अंदरूनी फैक्टर्स में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, मैं ब्रीफ करता हूँ आपको, मजा आएगा सुन करके। इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? इंटरनल फैक्टर्स में पहली चीज होती है ये चेंज जो आप करने जा रहे हो, क्या ये
जरूरी है? सबसे पहली चीज आती है, क्या मुझे ये करना चाहिए और कितना ये मेरे लिए जरूरी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्या मैं ये बदलाव करूं, क्या मेरी जिंदगी में उससे कुछ फर्क पड़े, क्या ये उस लायक है कि मैं इसको अप्लाई करूं? क्या मैं सच में अपनी जिंदगी में वो बदलाव चाहता हूं? तो मैं जो सोच रहा हूं, जो मेरी डिजायर्ड पोजीशन है, क्या मैं डिजायर्ड पोजीशन पे जा करके खुश रहूंगा? ये सोचना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको टाइमलाइन पे लेकर के जाते हैं। हम आपको पास्ट की टाइमलाइन दिखाते हैं, फिर हम आपको फ्यूचर टाइमलाइन पे लेकर के जाते हैं। और फ्यूचर टाइमलाइन पे जब आप जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि जब आप उस जगह पहुंच गए हो, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जहां आप जाना चाह रहे हो, आप जब उस जगह पहुंच गए हो, तो उस जगह पहुंच करके आपको अच्छी फीलिंग्स आ रही है, या उस जगह पहुंच करके आपको दुख हो रहा है कि इससे अच्छा तो मैं जाता वहीं था? समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि जब आप जो करना चाह रहे हैं वो आपने पा लिया, चलिए, आपको पता कैसे चलेगा कि आप वहां पे उस जगह जाकर के खुश रहने वाले हैं? कोई बंदी वेट लॉस करना चाहती है, उसको वजन लूज करना है, लेकिन वो सब कुछ ट्राई कर रही है लेकिन वजन लूज नहीं कर रही है। दो रीजन हो सकते हैं। पहली चीज कि उसने अपनी सेल्फ इमेज में उस वेट को एक्सेप्ट कर लिया है कि फला 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 रीजंस की वजह से मैं मोटी ही रहने वाली हूँ। सपना व्यास पटेल, आपने नाम सुना होगा, शी इज अ यूट्यूबर, अ फिटनेस एक्सपर्ट और बहुत वेल नोन सेल्फ मेड मॉडल है। उसने भी वेट अपना रिड्यूस किया था और फिर उसने उस चीज को कॉर्पोरेट वे में प्रोजेक्ट किया, और आज वो अपने आप में एक हस्ती है, एक मोटिवेशनल स्पीकर के जैसे काम करती हैं और एक फिटनेस गाइड के जैसे भी काम करती है। तो अगर उसने आइडेंटिफाई कर लिया होता कि मेरा वजन जो 113 किलो या 112 किलो जो है वो ही रहने वाला है। ज्यादातर लोग बच्चों को जस्टिफिकेशन देते हैं, मेरे भी ऐसे हैं नोन, जो कहते हैं कि भाई हमारे मम्मी पापा मोटे थे तो हम मोटे रहने वाले हैं, मेरी हेरिडिटी में मोटापा आया है, और जो भी है, मतलब मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ दिन में तो भी मेरा वजन कम नहीं होता। ऐसे बहुत सारे हमारे पास आते हैं। ये आपकी इकोलॉजी है कि आप क्या रीजन अपने दिमाग को दे रहे हो कि आपका वजन क्यों कम नहीं होना चाहिए। और एक टिपिकल मेरे क्लाइंट में जब मैंने निकाला था तो उसमें ये आया था कि उसको ये नहीं पता कि जब लोग अगर उसको छेड़ेंगे, अच्छा है मैं मोटी हूं तो कम से कम कॉलेज में लड़के मेरे को छेड़ते नहीं है, या लड़के मेरे साथ ऐसे वो प्यार वाला बिहेवियर नहीं करते, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर कोई ऐसी बातें करे तो मुझे कैसे हैंडल करना है। आप देख रहे हो किस लेवल पे इकोलॉजी पड़ी हुई है। इंटरनल इकोलॉजी में ये भी एक चीज आती है कि किस लेवल पे आपकी इकोलॉजी काम कर रही है। फिर है कि क्या अभी जो मैं जिस सिचुएशन में हूँ, उस सिचुएशन में कुछ ऐसा अच्छा हो रहा है जो जब मैं अपनी डिजायर्ड पोजीशन में पहुंचूंगा तो नहीं मिलेगा मुझे? ये भी इकोलॉजी होती है कि जब मैं वहां पहुंच गया जहां मैं जाना चाहता था, वहां पहुंचने के बाद ऐसा कोई सुख है जो अभी मुझे मिल रहा है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अलग रखना है इसमें से। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है जो मैंने बताया कि मैं डोमिनोज पे जाता हूँ और मैं डोमिनोज का वो जो जिंगी पार्सल है वो खा लेता हूँ, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मुझे देता है, उसको मैं अलग रखूंगा। लेकिन क्या ऐसी कोई एडवांटेज है जो मैं आज फील कर रहा हूँ कि जो मुझे आज फायदा दे रहा है, इसलिए मैं उसको मैं वहां आगे जाकर के उसको अगर वो खो जाएगा तो मैं नहीं ले पाऊंगा। जैसे कि एक मेरे पास केस स्टडी आई थी, मैं आइडेंटिटीज रिवील नहीं करूंगा लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि एक मेरे पास केस स्टडी आई थी कि अ, हर 6 महीने में वो बंदा मेरे पास ट्रीटमेंट लेने आता था। हर 6 महीने में उसे कुछ प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, बैक पेन रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी, और वो हर 6 महीने में मेरे पास ट्रीटमेंट लेने आता था। हर 6 महीने में ट्रीटमेंट लेने के टाइम पे हर 6 महीने में वो ऐसी हालत में आता था कि भाई अब तो मैं उठ भी नहीं सकता, अब तो मैं चल भी नहीं सकता, और वो बिस्तर पकड़ करके करीब करीब 1 डेढ़ महीने की छुट्टी मार करके और घर पे आराम करता था। और फिर 6 महीने निकलने के बाद, वो ट्रीटमेंट लेने के बाद 1 डेढ़ महीना ही वॉज नॉर्मल, फिर से 6 महीने बाद ये साइकिल रिपीट होती थी। अब जब पूछा गया कि भाई ये साइकिल क्यों रिपीट होती है, जब मैं उसके अंदर इकोलॉजिकल चेक के लिए घुसा
तो मुझे पता चला कि उसको इस चीज से फैमिली में सिग्निफिकेंस मिलती थी और उसके ऊपर जो डिमांड्स थी वो कम हो जाती थी। हिडन हिडन फॉर्मूला, हिडन प्रोपोगेंडा, ठीक है ना, गर्भित, गौण जिसको बोलते हैं कि गर्भित या गौण प्रोपोगेंडा। दिमाग में ऐसा था कि भाई क्योंकि वो जब ठीक हो जाता था नॉर्मली काम करने लगता था, अपना सारा काम दिन भर का जो भी ऑफिस से रिलेटेड काम था वो नॉर्मली करने लगता था और फैमिली में नॉर्मल हो जाता था, तो लोग उसको देखते ही नहीं थे, भूलना चालू कर दिया था लोगों ने उसको। लेकिन जब वो कंप्लेन करता रहता था, है ना, तो जब वो बिस्तर में पड़ा हुआ है तो सब लोग उसके आसपास घूम रहे हैं, अरे हाँ बेचारा ऐसा होता है, उसको तकलीफ है, ये है वो है वो है, सिग्निफिकेंस मिल रही है, वर्दीनेस मिल रही है। अब ये देखिएगा गौर से कि कहीं आपके अंदर कहीं ये तो नहीं पड़ा हुआ है। मैंने इसीलिए आपको बोला कि जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो वो इतना सुपरफिशियल नहीं है, जबकि हमारी बॉडी ही हमारा सिस्टम है, इकोसिस्टम को बॉडी ही मेंटेन करती है। तो हिडन एजेंडा क्या है, हिडन प्लेजर क्या है, गर्भित सुख कुछ आपको मिल रहा है, कोई गौण आपको एडवांटेज मिल रहा है, तभी आप अपनी इस पोजीशन को नहीं छोड़ पा रहे हो और आप उस पोजीशन पे खुश नहीं हो। बस देखना ये है कि ये जो गर्भित सुख आपको मिल रहा है ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है या ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट में आपको मदद करने वाला है। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यूज करना उन लोगों को सिखाते हैं जिनकी लाइफ की एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है, उनको हम हर छोटी छोटी खुशियों में खुश होना, छोटी छोटी चीजों को लेकर के खुश रहना सिखाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि उसकी अब लाइफ जो है वो थोड़ी सी बची है तो वो खुश रहे, जो उसको करना है करने दे। हम नॉर्मल लाइफ में भी यही करते हैं। लेकिन समझिए इस बात को कि यहाँ पे भी जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से ट्रेन कर रहे हैं, अब जो रिवॉर्डिंग वाला सिस्टम जो है ना वो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला ही सिस्टम है, लेकिन उसके साथ में आपको ये समझना चाहिए कि जो फायदे आपको आपकी डिजायर्ड पोजीशन पे जाकर के मिलेंगे, क्या वो फायदे अभी मिलने वाले फायदे से ज्यादा है या अभी मिलने वाले फायदे से कम है? अगर इतनी सी बात आप समझ जाते हैं तो आप अपनी इंटरनल इकोलॉजी को क्लियर कर लेते हैं। तो फिर से मैं बताता हूँ, इकोलॉजी मतलब क्या आपको रोक रहा है, कुछ चीज है जो आपको रोक रही है उस जगह जाने की। आप चेंज चाहते भी हैं, आप उसके लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो कुछ ना कुछ आपको रोक रहा है, कहीं ना कोई इकोलॉजी पड़ी हुई है जो आपको रोक रही है। इकोलॉजी एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल हो सकती है। एक्सटर्नल इकोलॉजी का एग्जाम्पल है आप जिस घर में रह रहे हैं, आप जिस वातावरण में काम कर रहे हैं, आप जिस एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, आपका ऑफिस देख लो, आपका घर देख लो। और इंटरनल इकोलॉजी में आता है आपके बिलीव्स, आप किन चीजों पे विश्वास करते हो। अगर ये जो आप करने जा रहे हो ये आपके बिलीफ के अगेंस्ट में है, जैसे मैंने बताया कि भाई मेरे मम्मी पापा भी मोटे थे, मेरे दादा दादी भी मोटे थे, हमारे यहाँ हेरिडेटरी में मोटापा है और मैं कुछ नहीं खाता हूँ तो भी मैं मोटा रहता हूँ, मैंने इतनी कोशिश करी तो भी मेरा वेट लॉस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने अपने अंदर एक ऑलरेडी डेफिनेशन लगा दी कि मैं मोटा ही रह सकता हूँ, मैं पतला हो ही नहीं सकता। खत्म होगी बात। जब आपने ये ऑलरेडी लगा दिया, आपके फिल्टर में ऑलरेडी आपने ये रख दिया, अब आप करते रहो कोशिश, वो आपको उससे नीचे लेके ही नहीं जाएगा। ये जो सेट पॉइंट आपने कर दिया कि भाई ये सेट पॉइंट है, इतना ही मेरा वेट रहता है। कई लोगों को हमने देखा है कि जिनकी काफी उम्र होने के बाद भी उनका वेट जो है वो सेम रहता है। वो कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि भाई मेरा तो 50 साल हो गए, मेरा वेट ऐसा ही है, 30 साल हो गए, मेरा तो 67 68 से ऊपर जाता ही नहीं है। ये उनका माइंड ने सेट पॉइंट उसको ले लिया है, उसमें से उसको एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि उससे वो एक्टिव रहते हैं, वो सोचते हैं उससे वो फिट रहते हैं, इतना वेट मेंटेन रहने से वो अच्छे रहते हैं, इसीलिए वो उस वेट रेंज को अपने आप अनकॉन्शियसली मेंटेन रखते हैं। तो फर्क यहाँ पे समझिएगा। इकोलॉजी दूसरा फैक्टर होता है जो आपको, जो आपकी लाइफ में चाहिए उसे पाने से रोकता है। ये बहुत ही गर्भित है, ये इतना डीप है कि हम लोग, मैं मेरे सेशंस में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन भी लोगों को देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उनकी इकोलॉजी चेक पे आता हूँ, इकोलॉजी तोड़ने पे आता हूँ, क्योंकि इकोलॉजी पैटर्न ब्रेकर की तरह काम करती है। इकोलॉजी आपके बिलीव्स को चेंज करने के लिए काम करती है। इकोलॉजी आपकी वैल्यूज के लिए आपको अवेयर करती है कि आप क्यों कुछ करना चाह रहे हो,
और क्या करना चाह रहे हो और कैसे वो आपको रिजल्ट देगा। तो इकोलॉजी को समझिएगा। और 2 क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं जब इकोलॉजी चेक होती है। पहला क्वेश्चन होता है प्रेजेंट कंडीशन में आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों इस कंडीशन में से बाहर निकलना चाहते हैं, नंबर 1। अगर आप इस कंडीशन में से बाहर निकल जाएंगे तो आपको क्या फायदे होने वाले हैं, और अगर आप इसी कंडीशन में रहेंगे तो आपको क्या नुकसान होने वाला है। ये पहला सेट ऑफ क्वेश्चन है। फिर से पहला सेट ऑफ क्वेश्चन प्रेजेंट पोजीशन। अगर आप प्रेजेंट पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं तो आपको फायदे क्या है, अगर आप प्रेजेंट पोजीशन में ही रहते हैं तो आपको नुकसान क्या है। इसके साथ ही नीचे 2 और क्वेश्चन लिखिएगा कि प्रेजेंट पोजीशन में अगर मैं इससे बाहर निकल जाता हूं तो उसके नुकसान क्या है, और अगर मैं इसी में रहता हूं तो उसका फायदा क्या है। नोट कर लीजिएगा। राइट, पहली चीज प्रेजेंट पोजीशन, या मैं जो प्रेजेंट में जहां पे हूं वहां पे, उसमें पहले 2 क्वेश्चन, अगर मैं इस पोजीशन से बाहर निकलता हूं तो एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है, अगर मैं इसी पोजीशन में रहता हूं तो डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है। दूसरे 2 क्वेश्चन इसी में, अगर मैं इस पोजीशन से बाहर निकल जाता हूं तो नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस, अगर मैं इसी पोजीशन में रहता हूं तो फायदे क्या है, एडवांटेजेस। सेम चीज आपको डिजायर्ड पोजीशन के साथ भी करनी है। डिजायर्ड पोजीशन में आप सोचिए कि जहां आप जाना चाहते हैं, जिसके लिए आप जो चेंज चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, उस परिवर्तन हो गया है, उस जगह पे जाइए मेंटली, और फिर वहां जाकर के सोचिए कि इस पोजीशन में जब मैं चेंज हो चुका हूं, जो मुझे चाहिए था मैंने चेंज कर लिया है, जिस पोजीशन में आना चाहता था मैं आ गया हूं, जितना पैसा कमाना था कमा लिया है, अब फिर सोचिए वहां बैठ करके कि इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है, और अगर मैं इस पोजीशन में नहीं आता हूं तो उसके फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है। ये 8 क्वेश्चन के आंसर आज आपको होमवर्क में लिख करके रखने हैं। फिर से यदि आपको कोई इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट में भी मुझे लिख सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप अपना जो ग्रुप बना हुआ है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं और क्लैरिफिकेशन उसके ऊपर दे दूंगा। लेकिन इकोलॉजी चेक यदि आप नहीं करते हैं तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अगर कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल या एक्सटर्नल इकोलॉजी आपको रोक के रख रही है तो आप दुनिया में अपने जीवन में कुछ भी बदल नहीं सकते। आपको इकोलॉजी को कंफर्म करके ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको हटाना बहुत जरूरी होता है। यही हम लोगों के लिए मुश्किल से मुश्किल काम होता है एज ए एनएलपी थेरेपिस्ट, एज ए एनएलपी कोच, एज ए एनएलपी मेंटर ऑल्सो, कि हम लोगों को लोगों की ये इकोलॉजी निकालते निकालते हमारे पसीने छूट जाते हैं। आदमी छोड़ने को ही तैयार नहीं होता, वो अपने ईगो को छोड़ने को, अपने पैटर्न्स को छोड़ने को ही तैयार, उसका माइंड ये मानता ही नहीं है कि कभी वो इस पैटर्न को छोड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कुछ हिडन प्लेजर मिल रहा है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ अंदरूनी सुख आपको इस दुख में भी, इस दर्द में भी मिल रहा होता है, जो आपको इस दर्द को नहीं छोड़ देता। तो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के सेकेंड डे के लेक्चर में इकोलॉजी, प्रेजेंट पोजीशन, जहां जाना है वो डिजायर्ड पोजीशन, यहाँ से वहां का सफर, और क्या आपको रोकता है, इकोलॉजी चेक। इकोलॉजी चेक के साथ मैं एंकर्स भी कल डिस्कस करूंगा, जो आपको एक्सटर्नल इकोलॉजी को कैसे बदलना है और इंटरनल इकोलॉजी को कैसे बदलना है उसके बारे में बताऊंगा। तो कल हम बात करेंगे एंकर्स और ट्रिगर्स की, राइट। और कल हम कंडीशनिंग की बात करेंगे, कैसे आप अपने एंकर्स और इनको चेंज कर सकते हो जिससे आप अपने उस तरफ जा सको जहां आप जाना चाहते हो। ओके, सो अभी तक जो भी बात हुई वो कुछ लोगों को समझ में आई, मुझे पता है थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक है और मैं बहुत छोटे से टाइम में पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं आगे, यदि आप मेरे साथ या तो अपनी एनएलपी थेरेपी के लिए या अपनी काउंसलिंग के लिए या आप एनएलपी सीखने के लिए मेरे साथ जुड़ते हैं, तो हम इस टॉपिक की और डिटेल में डुबकी लगाएंगे। ये बहुत जरूरी और बहुत डीप टॉपिक है, ये तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सेशन में पूरा कर लूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आज का डिस्कशन यहीं पे मैं खत्म करूंगा इकोलॉजी के ऊपर। कल फिर से मिलेंगे। पहले मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, आप लोग पानी वानी पी लीजिए, एक वॉशरूम ब्रेक ले लीजिए, और फिर आज का डिस्कशन पैनल और क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे, राइट। सो इन द मीन टाइम
यदि किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और जब मैं वापस आऊंगा तो कल के जैसे हम लोग 10-20 मिनट जो है विल डिस्कस अबाउट द इकोलॉजीज दैट यू आर हैविंग, और ये जो अभी टॉपिक डिस्कस किया उसके क्वेश्चंस के बारे में। और ज्यादा डिटेल के लिए आप नीचे वाला फॉर्म भर सकते हैं जो आपको दिया गया है साथ में, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसी भी तरह की आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, किसी भी तरह आप परेशान है अपने जीवन में किसी चीज को लेकर के, तो आप बिंदास, विदाउट एनी यू नो doubt, you can leave it down in my message box and I will have a conversation with you and let us work it out, right? अगर आप सच में विलिंग है अपने जीवन को उस नए लेवल पे ले जाने के लिए, तो श्योर मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, waiting here to help you, or take a break and come back, we'll discuss something about your questions regarding this topic, right? So see you, come back fast.